Hello everyone. Welcome to today's class. Today there will be the first lecture of some very basic concepts which we have learned in our schools and college. Let's start with the very basic of statistics, which is applicable in biostatistics. You'll come to know later on. Let me start with the terms mean, median, and mode. So these three were called central टेंडेंसीज ओके सेंट्रल टेंडेंसी क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बीच में ही मिलता है लाइक मीन मीडियन एंड बोर्ड मोड इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड in they lie near the center, so these are called central tendencies. Let's understand this one by one. We will denote the mean as x bar, median is m for our ease, and mode is z. Now let's take a rough example. Let's say 3 2 8 7 2. Okay. Now if I tell you find out the mean, what will you do? We'll directly add this 3 plus 2 plus 8 plus 7 plus 2 divided by कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 5. So this is called n is 5. Okay, n is a number of observations. Here n is 5. So we'll add how much? 5 plus 8 15 15 5 20 22 22 by 5. How much will be? 5 4 20.4. So this is your mean. Easy. Now if I give you an example, let's say marks obtained. Okay, marks obtained, and these are students. If I say that 3 students have scored 8 out of 10, 2 students have scored 7 out of 10, and your 5 students have scored 5 out of 10. Okay. Now you find out the average. How will you find out? ठीक है, तो इन केसेस में स्टूडेंट्स को वी कैन टेल इट ऑब्जर्वेशंस कि कितने स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन है ना, सो वी कैन टेल दिस आर डेटा, सो दिस आर एक्स आई एंड marks is fi. Why fi? F represents frequency. Like 3 students have a frequency of obtaining 8 marks, 2 students have a frequency of obtaining 7 marks. In that way 5 students have an frequency of obtaining 5 marks. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, वेरी इजी. निकालो fi इंटू xi. ठीक है, 3 इंटू 8 24, 14, 5 से 5 25. fi xi निकाल लिया. अभी इसका सम निकालो. दिस रिप्रेजेंट समेशन ऑफ fi xi. इसका भी समेशन निकाल के रखो, समेशन ऑफ fi. ठीक है, ये क्या होगा? 8 7 15 5 20. ये क्या होगा? 4 4 8 8 5 थर्ड. if I can 3 चलिए 2 1 3 1 4 2 6 63. So mean is nothing but sigma of fi xi divided by sigma of fi. मतलब ये divided by ये 63 divided by 20. So this will be how much? ये होगा तुम्हारा mean when frequency and xi are given. ठीक है, यहाँ पे these are not grouped. Grouped का मतलब क्या है? This is an example of ungrouped data. ठीक है, now और एक ही तरीके का डेटा हो सकता है which is group data. Let me give an example, same example. Let me give you 55 to 59. 55 is too much.
0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 3, 8, 7 सपोज। अभी अगर ऐसा दिया गया हो कि थ्री स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 0 to 10 marks, 8 scored between 11 to 20, 7 scored between 21 to 30, ऐसे भी दिया हो सकता है। So this is not xi, this is interval of xi. Okay, this is interval of xi and this is fi. So you need to find out xi from here. Xi is always a single number. Okay, so xi निकालने का एक ही तरीका है, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। 0 plus 10 divided by 2 is 5. 11 plus 20 is 31. 31 divided by 2 is 15.5. ये होगा 25.5। अभी आ गया एफ आई एक्स आई, तो विल बस मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई करो, ये करो, देन इसका समेशन निकालो एफ आई इंटू एक्स आई, और इसका भी समेशन सिग्मा ऑफ एफ आई, फिर क्या, ये डिवाइडेड बाय ये कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये था मीन। दिस वाज ऑल अबाउट मीन, और इसके आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। These are the main things which are very important for exam, any PhD entrance, और बेसिक चीजें यही आता है, इतना इन डेप्थ में नहीं आता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मीडियन। मीडियन क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3, 8, 2, 6, 2। मीडियन निकालने के लिए मीडियन रिप्रेजेंट्स मिड पॉइंट मान लो। ठीक है, we have to always write the data in the ascending order, so 2, 2, 3, 6, 8। अभी मिड पॉइंट क्या है इसका, 3। कैसे बोला कि 3 के इधर 2 नंबर है, इधर 2 नंबर है, तो ये तो देख के बता सकते हैं कि मीडियन इज 3। अगर बहुत वैल्यू हो, अगर 100 वैल्यू हो, 1000 वैल्यू, तब कैसे निकालेंगे, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। अच्छा चलो, ये बता दिया। यहाँ पे था n इज इक्वल टू 5, मतलब n इज ऑड वैल्यू, 5 है ना, 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूं और एक अगर लगा दूं 1, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये यहाँ पे हो गया ऑन इज n इज इक्वल टू 6, n इवन हो गया। अभी मीडियन क्या होगा, तो मीडियन यहाँ होना चाहिए कहीं पे, यहाँ 3, इधर 3 है ना, 2 और 3 के बीच होना चाहिए 2.5, जैसे हम मालूम है 2.5 होगा। और हम निकालेंगे कैसे, देयर शुड बी सम फॉर्मूला। सो मीडियन निकालने के लिए, जैसे हमने देखा, 2 फॉर्मूला हो सकता है मीडियन निकालने के लिए, 2 फॉर्मूला। एक व्हेन n इज ऑड, एक व्हेन n इज इवन। n इज ऑड जब होगा तब फॉर्मूला इज n प्लस 1 बाई 2th टर्म। जब n इवन है तब फॉर्मूला होगा n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, n बाई 2th, ये होगा। तो यहाँ पे n क्या था, 5। ठीक है, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या था, हमने लिखा था ना, जब 1 नहीं था, जब यहाँ पे 1 नहीं था, तो ये 5 था यहाँ पे, तो थर्ड टर्म क्या था, 1 2 3। सो दिस वाज योर थर्ड टर्म, सो आंसर वाज 3, मीडियन वाज 3। यहाँ पे जब ये 6 हो गया, ठीक है, जब 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया, तब क्या होगा, 6 बाई 2 इज 3, ये हो गया 3 थर्ड टर्म, और यहाँ पे 6 बाई 2 इज 3 प्लस 1, तो ये बन गया फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3, थर्ड टर्म इज 2 प्लस फोर्थ टर्म इज 3 डिवाइडेड बाई 2 which is 2.5. So in this way we find out the median when n is odd or n is even. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है,
यहाँ पे गलत हो सकता है, इट्स नॉट n+1/2, ये गलत होगा, इट्स n/2 + 1। ठीक है, ये याद रखना है जरूर। लास्ट इज योर मोड। लेट मी गिव एन एग्जांपल। 1 2 3 7 8 1 3 8 17 6 8 3 2। यहाँ पे मोड क्या होगा? मोड इज नथिंग बट द डेटा विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है, सो मोड विल बी 1। ठीक है, यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 8 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मोड होगा 3 एंड 8, दोनों मोड होगा, या दोनों हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा? 8 8 8, 8 is repeating 3 times। ठीक है, और यहाँ पे 3 is repeating 2 times। so highest क्या रिपीट हो रहा है? 8, so mode will be 8। तो ये जो डेटा है दिस इज यूनिमोडल, क्योंकि एक मोड है। ये जो है दिस इज बाई मॉडल। ओके, 3 भी हो सकता है ऐसे। सो लेट मी समराइज टुडेज क्लास। मीन का फॉर्मूला क्या है? अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज फॉर्मूला fi डिवाइडेड बाय fi। फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या है? व्हेन n इज odd, n+1/2th टर्म। और मीडियन जब n इज इवन इज n/2 प्लस n/2 प्लस 1th term divided by 2. So this was all about today's class. So अगले class में we'll be studying some more new concepts, and this will be an extension of this biostatistics only. Okay, चलो bye bye.